ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا، مزدور تھا۔ ایک دن رات دیر سے گھر آیا تو دیکھا دروازے پر ایک نقاب پوش لڑکی بیٹھی ہے۔ میرے آتے ہی اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھ سے بولی، میری عزت خطرے میں ہے، مجھے ایک رات کے لیے چھپا دو۔ میں مان گیا اور اسے اپنے گھر کے کمرے میں چھپا دیا۔ صبح وہ لڑکی فجر کے وقت چلی گئی اور جاتے جاتے بولی، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ جب کچھ دیر بعد میں اسی کمرے میں گیا تو جان نکل گئی، کیونکہ بیڈ پر 16 سال کی اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا تھا۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور بدقسمتی سے بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ رشتہ دار تو ویسے بھی یتیم اور غریب کو منہ نہیں لگاتے، اس لیے میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ نہ تو میں پڑھا لکھا تھا جو مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی، اور نہ ہی مجھے کوئی ہنر آتا تھا، تو مجھے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنی پڑی، اور پھر میں نے اسی کام کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ میں روز صبح گھر سے مزدوری کرنے نکل جاتا۔ کبھی میں کھانا باہر سے کھا لیتا تھا اور کبھی میں خود گھر میں پکا لیتا تھا۔ محلے والے اب مجھے کہتے تھے کہ تم شادی کر لو، مگر میں جانتا تھا کہ بھلا مجھ جیسے غریب اور ان پڑھ انسان سے کون لڑکی شادی کرے گی۔ لیکن پھر میری زندگی نے ایک نیا اور عجیب موڑ لیا۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ میں دنگ رہ گیا، اور میری زندگی کیا، میرے حالات بھی بدل گئے۔ اس دن مزدوری کر کے میں گھر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اتنی جلدی گھر جا کر کیا کروں گا۔ بازار سے کھانا کھا کر اور تھوڑی چہل قدمی کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ میں ایک ڈھابے پر چلا آیا، کھانے کا آرڈر دیا۔ ابھی میں نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک عجیب و غریب حلیے والا فقیر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے سارے بال آگے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا کہ وہ میرے پاس کیا کرنے آیا ہے، جبکہ وہاں اور بھی لوگ تھے اور بیٹھنے کے لیے بھی کافی جگہ تھی۔ مجھے اس فقیر کا حلیہ مشکوک سا لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہیں یہ مجھے لوٹ ہی نہ لے، مگر میری توقع کے برعکس اس نے میری پلیٹ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ میں اپنی جگہ حیران بیٹھا رہ گیا اور اسے کچھ کہنے لگا تھا کہ پھر میں چپ ہو گیا کہ بیچارہ شاید بھوکا ہے، اس لیے کھانا کھا لے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میرے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، جلدی گھر جا، خوش قسمتی تیرے گھر کے دروازے پر بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے، جا گھر پہنچ، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا، اور میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر خوش قسمتی بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور وہ کوئی ڈھونگی بابا ہے جو کھانا کھانے آیا تھا۔ بس میں نے اپنے لیے دوبارہ کھانا منگوایا اور کھانا کھانے لگا۔ جب تک میں گھر پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے دور سے ایسے لگا جیسے میرے گھر کے دروازے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دم اس فقیر کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نقاب پوش لڑکی سکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے کہ کہیں وہ مجھے کسی مشکل میں نہ پھنسا دے۔ لڑکی ذات کا یوں اتنی رات کو کسی آدمی کے گھر باہر موجود ہونا اچھی علامت نہیں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ پا کر ایک بار پھر اس سے سختی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، مکمل حسن کا شہکار، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کوئی گڑیا ہو۔ میں اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا کہ وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو، میری عزت خطرے میں ہے، اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ میں اس کی بات سن کر بوکھلا گیا کہ ایسے کیسے اس انجان لڑکی پر بھروسہ کر لوں، کیا پتا وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، بس ایک رات کے لیے چھپا دو، تم ایک ایماندار آدمی لگ رہے ہو، اگر مجھے ایک رات کے لیے پناہ دو گے تو میں تمہیں اپنی سونے کی بالیاں دے دوں گی۔ اس نے اپنی کانوں کی بالیاں مجھے دکھائی۔ میں نے سوچا کہ شاید فقیر سچ ہی کہہ رہا تھا، یہ لڑکی تو میرے لیے خوش قسمت ہے، ایک رات کی پناہ کے لیے مجھے سونے کی بالیاں دے رہی ہے۔ میں کافی عرصے سے اپنا کام کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ اب موقع مل رہا تھا تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ میں اس لڑکی کو گھر کے اندر لے گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر کے اندر جا کر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں صبح فجر کے وقت چلی جاؤں گی۔ میرے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ میں نے اس لڑکی کو رہنے کے لیے کھول دیا اور دوسرے کمرے میں خود چلا گیا۔ ساری رات میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کو پناہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پھر یہی سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں باہر آیا۔ وہ لڑکی بھی جاگ چکی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔
مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پناہ دینے کا شکریہ، میں اب جا رہی ہوں، یہ لو بالیاں۔ اس نے اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر مجھے دے دی۔ میں نے خوش ہو کر وہ بالیاں جیب میں رکھ لی۔ وہ کافی بھاری بالیاں تھیں اور مجھے امید تھی کہ ان کو بیچ کر اچھے پیسے ہاتھ آئیں گے۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگی، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہ پایا اور اس سے پوچھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، مگر اتنی دیر میں وہ گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ میں الجھتا ہوا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ لڑکی کوئی سامان وغیرہ نہ چرا گئی ہو۔ میں فوراً بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک 16 سال کی لڑکی بیڈ پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں ساکت رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں تو رات کو ایک لڑکی کو گھر کے اندر لایا تھا اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے سامنے یہاں سے گئی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ دوسری لڑکی کہاں سے آ گئی اور یہ کون تھی؟ میں بری طرح گھبرا گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی، ارے تم اتنی جلدی بھول گئے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا گھونگھٹ الٹا دیا۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا کیونکہ وہ تو ایک 16-17 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ میں تو چکرا کر رہ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، تم میری بیوی کیسے ہو سکتی ہو؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی، لگتا ہے تم بھول گئے ہو، ابھی 2 ماہ پہلے کی تو بات ہے جب تم ملک صاحب کی کوٹھی پر کام کرنے آتے تھے تو میں تمہیں دیکھا کرتی تھی اور تم مجھے دیکھا کرتے تھے۔ بھول گئے ہو کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا اور مجھے سب یاد آ گیا۔ یہ 4 ماہ پہلے کی بات تھی۔ 4 ماہ پہلے مجھے ایک ملک صاحب کے ہاں کام کرنے کا موقع ملا تھا، جو اپنے گھر کے ساتھ ایک کوٹھی بنا رہے تھے۔ جس ملک صاحب کے ہاں کام کیا تھا وہ کافی امیر تھے اور ہم سب مزدور بہت خوش تھے کہ آج کی دہاڑی زیادہ ملے گی، کیونکہ اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ سخی دل ہے اور بہت کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے۔ صبح سے لگے ہم شام تک کام کرتے رہے۔ جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو ملک صاحب نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ہم اپنی مزدوری لینے کے واسطے کھڑے تھے کہ اچانک اندر سے ایک نقابپوش لڑکی باہر آئی۔ جانے وہ ملک صاحب کی کیا لگتی تھی، مگر اس نے ہمیں بتایا کہ آج صاحب کو کسی ضروری کام سے جانا پڑا تھا، اس لیے وہ ہمیں کل پیسے دے دیں گے۔ ہم سب بھی مطمئن ہو گئے کیونکہ کل بھی تو کام پر آنا تھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگا کہ اس نقابپوش لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی گہری آنکھیں بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ حیرت والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ لڑکی مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں تجسس اور شک میں پڑ گیا کہ اسے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ خیر ہم گھر سے نکل آئے۔ اس نقابپوش لڑکی کا مجھے یوں دیکھنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی مزدور سے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو ابھی ہمیں صاحب کا پیغام دینے آئی تھی؟ وہ چونکہ مجھ سے پہلے سے یہاں مزدوری کر رہا تھا اس لیے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا، وہ صاحب کی کوئی رشتہ دار ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب کی بیوی ہے یا بہن یا کوئی اور رشتہ دار، مگر جب سے میں کام کر رہا ہوں اس لڑکی کو ہمیشہ نقاب میں ہی دیکھا ہے۔ جانے وہ لڑکی کون تھی اور مجھے یہ گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی تھی؟ میں اگرچہ مزدور تھا لیکن میں اچھی شکل و صورت رکھتا تھا اور باڈی بلڈر کی طرح دکھتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ مجھے دیکھتی تھی، کیونکہ اگلے کئی دن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب میں اپنے کام پر لگا ہوتا تھا تو وہ مجھے چوری چوری دیکھتی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات وغیرہ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، ورنہ میں اس سے پوچھ ہی لیتا کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے۔ یہ بات میرے ساتھی نے بھی نوٹ کی اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں پسند کرنے لگی ہے جب یہ یوں چوری چوری تجھے دیکھنے آتی ہے۔ مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا کیونکہ اس کی نگاہوں میں جیسے خاموش پیغام چھپا ہوتا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر خود مجھے موقع دے رہی تھی تو میں پھر لڑکا تھا، کیسے پیچھے ہٹ جاتا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ وہ نقابپوش لڑکی کافی حسین لگتی تھی اور ابھی تک اس نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ میں اشارے سے اسے نقاب ہٹانے کا کہتا تو وہ شرما کر پیچھے ہٹ جاتی اور ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیتی۔ ایک دن ملک صاحب کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے کہ اس نے مجھے گھر کے اندر بلایا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے ملنے کے لیے بلایا ہے تو ضرور آج اپنا چہرہ دکھا دے گی، مگر اس نے میرے آتے ہی ایک کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ اس کاغذ پر اپنا نام لکھو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کیونکہ اس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، وہ سب تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم اس پر اپنا نام لکھو۔ اس نے 3-4 کاغذات پر مجھ سے اپنا نام لکھوایا اور کہنے لگی، اب تم جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے مجھ سے کیوں دستخط کروائے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے نام کون سے کوئی پراپرٹی اور دولت ہے جو وہ دھوکے سے اپنے نام کروا لے گی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔
वैसे भी वो खुद इतनी अमीर थी और मलक साहब की लाडली बेटी थी, तो इस पर मैं शक कैसे कर सकता था। अगले दिन पता चला कि वो शहर से बाहर चली गई है और शायद हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मुझे बताकर भी नहीं गई। 2 दिनों बाद मेरा काम वहाँ से ख़त्म हो गया और मैं बहुत दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से आया था। इस लड़की ने चाहे दिल लगी की थी, मगर मैं सच में उसे पसंद करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे भूलने लगा और किसी और जगह मजदूरी करने लगा। यूँ 2 माह गुजर गए और आज अचानक वो मेरे सामने थी, और इस साल में कि मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरे घर में कैसे घुसी, जबकि मैंने तो उसे अंदर आते हुए भी नहीं देखा था। मैं साकित रह गया था, बिल्कुल गुमसुम सा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सच कह रही थी। वो वही लड़की थी। मैंने कहा, ये तो मैं मान लेता हूँ कि तुम वही नकाबपोश लड़की हो, मगर तुम क्यों झूठ बोल रही हो कि हमारी शादी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहने लगी, तुम्हें याद है मैंने आखिरी मुलाकात में तुमसे कुछ पेपर साइन करवाए थे? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। वो हंसकर कहने लगी, वो कोर्ट मैरिज के पेपर थे जिन पर तुमने साइन किया और फिर मैंने। यूँ अदालती कार्रवाई के मुताबिक हम मियाँ बीवी हुए। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ और कहा, शादियाँ इस तरह धोखे से नहीं की जाती। जब मुझे इल्म नहीं था कि मैंने किन पेपर्स पर दस्तखत किए तो मैं तुम्हारा शौहर कैसे हो गया और तुम यहाँ कैसे आ गई। वो परेशान हो गई और कहने लगी, मैंने जो कुछ किया है बहुत मजबूरी में किया है, वरना मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ, फिर तुम खुद फैसला कर लेना कि मैंने जो किया है वो गलत था या ठीक। मैं उसके सामने बैठ गया और उसकी कहानी सुननी शुरू की। वो कहने लगी, मेरा नाम जुनीशा है और मेरे वालिदैन मुझे प्यार से जूनी कहते थे। मेरे बाबा सब भाइयों से बड़े थे और मैं अपने भाइयों और बहनों में सबसे छोटी थी। मैं बचपन से ही कमज़ोर सेहत की थी, अपनी उम्र से कम ही लगती थी। अभी भी मैं 16-17 की लगती हूँ, लेकिन तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि मैं 20 साल की हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे वाकई हैरानी हुई थी। मैं उसे पहली नज़र में देखकर यही समझता था कि वो 16 साल की है। उसने अपनी कहानी सुनानी जारी रखी। कहने लगी, मेरी ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी जब तक हमारी पुप्पो हमारे घर नहीं आई थी। आज सुबह से ही हमारे घर में चहल पहल थी और हर कोई कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहा था, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सब नाश्ता करते ही कामों में लग जाते। मैंने हैरानी और तजस्सुस से अम्मा से पूछा, अम्मा खैर तो है, ये सब तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? अम्मा मुस्कुरा कर कहने लगी कि तेरी पुप्पो आ रही हैं। मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कोई पुप्पो भी है। कभी घर में जिक्र नहीं हुआ और ना ही कभी अब्बा ने बताया था कि उनकी कोई बहन भी है। मेरे साथ साथ घर के बाकी सब बच्चे भी हैरानी का शिकार नजर आ रहे थे। हम में से किसी को भी इल्म नहीं था कि हमारी एक पुप्पो है जो अमेरिका में रहती हैं। मैं सब कज़न से बड़ी थी और इस साल के आखिर में मेरी उम्र 20 बरस हो जाती। हैरानी वाली बात यह थी कि मुझे 20 बरसों तक इस राज से लाइलम ही रखा गया, बल्कि मुझे क्या सभी को ही मालूम नहीं था। मुझे ये तजस्सुस खाए जा रहा था कि इतने सालों से पुप्पो कहाँ थी और अब क्यों आ रही हैं। अम्मी ने मुझे कहा था कि तुम अपना कमरा खाली कर दो और चचा की बेटी के साथ इतने दिन रह लेना जितने दिन पुप्पो रहेंगी। मुझे अपने कमरे से बेदखल किया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा, ये कैसी पुप्पो हैं जो एक तो इतने सालों बाद आ रही हैं और उनकी वजह से मुझे कमरे से भी जाना पड़ रहा है। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती थी। ऐसे में जब अम्मा ने कहीं और सोने का कहा तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मालूम हुआ कि पुप्पो पूरे 1 महीने के लिए आ रही हैं। जिस पर मैंने एतराज़ किया तो अम्मा ने कहा, ये कमरा पहले तुम्हारी पुप्पो का ही हुआ करता था और तुम्हारी दादी ने ये स्पेशल कहा है कि उनकी बेटी के लिए वही कमरा तैयार किया जाए जिसमें वो पहले रहती थी। मैं दादी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि दादी बहुत सख्त थी और हम सभी उनसे बात करते हुए डरते थे, इसलिए मैं चुप ही रही। 2 दिनों बाद मेरी पुप्पो घर आ गई। पुप्पो को देखकर मैं दंग रह गई थी। वो हूबहू मेरे जैसी थी। वो सब भाइयों से बड़ी थी, मगर पुप्पो ने खुद को बहुत फिट कर रखा था। वो मेरी अम्मा से बड़ी थी मगर छोटी लगती थी। असल में पुप्पो ने भागकर शादी की थी, इसलिए दादा दादी ने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया था और कभी हमें हवा तक नहीं लगने दी थी कि हमारे बाप की बहन भी है। दादा बड़े सख्त मिजाज थे, इसलिए आज तक पुप्पो को हिम्मत न हुई कि वो घर में कदम रख सके। पिछले साल दादा की वफात हो गई थी, इसलिए दादी ने उनको घर आने की इजाज़त दे दी थी। पुप्पो अपने हुलिये से बहुत अमीर कबीर लग रही थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम्हारी शक्ल मुझसे कितनी ज़्यादा मिलती है। तुम मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहो। मैं भी खुश हो गई कि इस तरह मुझे अपने कमरे से बेदखल नहीं होना पड़ेगा। मुझे लगा था कि शायद मेरी पुप्पो बहुत मॉडर्न होगी क्योंकि वो अमेरिका से आई थी,
मगर उन्हें देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। वो भी दादी की दूसरी कॉपी थी, सख्त मिजाज और रवायत पसंद। मैंने 2-3 दिन में ही अंदाजा लगा लिया था कि मेरी पुप्पो की तबीयत हाकमाना सी है और उनकी हरकतें भी कुछ मशकूक सी थी। वो अक्सर फोन पर बातें करती रहती थी। पता चला कि अपने बेटे से बातें करती थी। उनका एक ही बेटा था जो अमेरिका में ही था। पुप्पो उसको अपने साथ नहीं लाई थी। मुझे अपनी कज़न को देखने का बहुत शौक था और मैं अक्सर पुप्पो से इसके बारे में पूछा करती थी कि वो आया क्यों नहीं, इसे लेकर क्यों नहीं आई। मैं तो वैसे भी तजस्सुस से पूछा करती थी, मगर पुप्पो ने जाने मेरी बात को कैसे रंग दिया कि मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। हालांकि मैंने तो पुप्पो के बेटे को कभी देखा भी नहीं था, बल्कि मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब बात थी कि वो अपने बेटे का जिक्र करती रहती थी, मगर उन्होंने कभी अपने बेटे की तस्वीर किसी को नहीं दिखाई थी। मुझे कहती थी कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है और उम्र में तुमसे चंद ही बरस बड़ा होगा। मैं जब तस्वीर का कहती तो पुप्पो टाल जाती। मुझे शक होने लगा कि ऐसी क्या बात है जो पुप्पो छुपा रही हैं। मैं ऐसे बगैर देखे उनके बेटे से शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती थी, मगर अब्बा को उनकी बहन ने ऐसे शीशे में उतारा कि वो इनकार ही ना कर सके और हाँ कर दी। फिर दादी ने बाबा को कहा कि घर के साथ वाले प्लॉट को तमीर करवाओ ताकि पुप्पो और उनका बेटा हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। अब्बा ने दादी की बात मानकर कोठी बनवाना शुरू कर दी। मुझे एक दिन इत्तेफाक से पुप्पो की कुछ बातें सुनाई दी। वो फोन पर किसी से कह रही थी मैं यहाँ पाकिस्तान आई ही इसलिए थी कि अपने तमाम मसलों का हल निकाल सकूं। मेरी तवक्को के आइन मुताबिक भाई की बेटी जवान हो चुकी है और शादी के काबिल है। बस इसीलिए अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे अपनी बहू बना रही हूँ। मैं तो ये सुनकर चौंक गई कि पुप्पो के यहाँ आने का मकसद अपने बिछड़े हुए को मिलना हरगिज नहीं था, बल्कि वो किसी खास मकसद से आई थी। इन्हीं दिनों अब्बा ने कोठी बनवानी शुरू कर दी। वो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी के बाद उनकी नज़रों के सामने और बिल्कुल साथ रहेगी। मैंने अब्बा को मना करना चाहा तो उन्होंने बुरी तरह मुझे झिड़क दिया और कहा कि वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकते। पहले ही वो सालों बाद आई है, अब ऐसा ना हो हमेशा के लिए नाता टूट जाए। मुझे अपनी पुप्पो के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। जाने वो क्या खास मकसद लेकर आई थी। थोड़े दिनों बाद पुप्पो का बेटा भी आ गया। वो बिलाशुबा खूबसूरत था, मगर चूंकि मैं मशकूक हो चुकी थी इसलिए मैं उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उससे शादी नहीं कर सकती थी। मैंने जब शादी से मना किया तो मेरे घर वालों ने कहा अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, मगर मैं क्या बताती उनको जब मुझे कोई और पसंद नहीं था। मैंने सोचा कि मैं किसी को भी पसंद करके घर वालों को बता देती हूँ ताकि वो मेरी शादी तो होने से रोके। तभी मेरी नज़र तुम पर ठहर गई। मैं तुम्हारी शख्सियत से नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी से मुतासिर हुई थी। हमारी कोठी पर काम करने से पहले एक बार हमारी मुलाकात हो चुकी थी। मेरे पैसों से भरा बैग एक सड़क पर एक लुटेरे ने छीन लिया था और तुमने उससे मुझे लुटा दिया था। इसकी बात सुनकर अचानक मेरे सामने वो मंजर आ गया जब एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था कि देखा बैग से एक नकाबपोश लड़की निकली। अभी वो चंद कदम दूर गई थी कि 2 लड़कों ने उससे बैग छीन लिया और भाग गए। मैंने ये देखा तो लड़कों के पीछे दौड़ लगा दी और कुछ दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया और उनकी खूब मार कुटाई की और इस लड़की का पर्स उसे वापस कर दिया। अब मैं समझा था कि जब मलक साहब के यहाँ में मजदूरी कर रहा था तो मुझे इस लड़की को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि इसको कहीं देख रखा था। उसने सांस लेकर अपनी कहानी दोबारा सुनानी शुरू की और कहने लगी फिर कुछ दिन बाद तुम हमारे घर काम करने आ गए। मुझे पहले ही नज़र में तुम अच्छे लगे थे, तुम बहादुर थे और मेरे काम आ सकते थे, इसलिए मैंने ऐसे जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एक दिन मैंने पुप्पो और उसके बेटे की बातें सुनी। पुप्पो उससे कह रही थी हमें जल्द अज जल्द तुम्हारी और जूनी की शादी करनी होगी। मुझे वो लड़की बहुत होशियार लग रही है, इसके चुकन्ना होने से पहले पहले काम करना है। पुप्पो मेरे पीछे मुड़ी तो मैं खड़ी थी। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। मैं भागकर वहां से गई और इसी दौरान पुप्पो के दबाव पर अब्बा ने शादी की तारीख तय कर दी और मुझे कहा कि जुमे को तुम्हारा निकाह है, तैयार रहना। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मगर बगैर सोचे समझे मेरे मुंह से निकला कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। बाबा को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मुझसे सबूत मांगे कि लाओ पेपर्स दिखाओ, मगर उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने 2 दिन का वक्त मांगा। उसी रात मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया। उसका शौहर वकील था। उसने उसी रात पेपर्स बनवाए जिन पर सुबह मैंने तुमसे साइन करवा लिए। उसी रात मैंने बाबा को वो पेपर्स दिखाए कि ये देखिए सबूत। बाबा बहुत गुस्से में थे, वो तो शायद मेरी जान ले लेते, मगर अम्मा ने बर वक्त मुझे बचा लिया और इसी वक्त दूसरे शहर मामू के घर भेज दिया। इसीलिए अगले दिन जब तुम काम पर आए तो तुम्हें मैं घर पर नहीं मिली थी। बाबा को पता नहीं था कि मेरा शौहर कौन है, वरना वो तुम्हें छोड़ देना। मैंने यही कहा कि मेरा शौहर मेरी दोस्त का भाई है।
मामू के घर जाकर मामला ठंडा हो गया। मैं वापस आ गई, लेकिन बाबा ने घर से निकाल दिया कि जाओ अपने शौहर के घर ही जाओ। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि अगर अपने शौहर के साथ घर जाकर रहोगी तो तुम्हारी पुप्पो मायूस होकर वापस चली जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ आई। मेरी दोस्त ने तुमसे मदद की दरख्वास्त का बहाना बनाया, और जब वो अंदर आ गई तो कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया और यूँ मैं भी अंदर आ गई। वो सुबह वापस चली गई और मैं यहीं रह गई, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे शौहर होने का ड्रामा कर लोगे तो मैं तुम्हें बदले में बहुत बड़ी रकम दूंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि पुप्पो के बेटे से मेरी जान छूट जाएगी, मगर मुझे क्या पता था कि मामला इस हद तक आगे चला जाएगा। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने पूछा, करना क्या है? असल में मुझे उसकी कहानी में दिलचस्पी पैदा हो गई थी और पैसे भी मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। कहने लगी, मेरे बाबा ने तुम्हें आज अपने दफ्तर में बुलाया है, तुम मेरे शौहर बन के वहाँ जाना। मैं डर रहा था कहीं वो मुझे पहचान न ले कि मैं तो वही हूँ जो उनके घर मजदूरी करता रहा था, मगर मेरा बदला हुआ हुलिया देखकर मैं तो खुद को नहीं पहचान पाया, तो वो भला कैसे पहचान सकते थे? महंगे कपड़े पहनकर बंदे की औकात कितनी जल्दी बदल जाती है। वहाँ मैं गया ज़रूर, मगर कुछ फ़ायदा ना हो सका। मैं उस सुबह वाला वाक़या बताने लगा जब उसके वालिद मलक सिराज साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया था। मैं नहीं जानता था कि सिराज साहब को हमारे आपस के ताल्लुक़ के बारे में कैसे मालूम हुआ, मगर उनके यूँ बुलाने से दिल में उम्मीद सी जाग उठी थी कि शायद वो मुझे अपना दामाद कबूल कर ले, क्योंकि यही हमारा प्लान था। मैं धड़कते दिल के साथ उनके सामने बैठ गया। सिराज साहब ने मेरा गहरी नज़र से जायज़ा लेते हुए बात का आगाज़ किया। मुझे जूनी की वालदा ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम मेरी बेटी की दोस्त के भाई हो। इससे ज़्यादा अहमियत मेरी नज़र में ना तुम्हारी है ना ही होगी। तुम्हें अपने दिलो दिमाग से मेरी बेटी का ख्याल निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी सूरत किसी गैर ख़ानदान में इसका रिश्ता तय नहीं करूँगा। मगर चचा जान मेरी बात को दरमियान में ही काट दिया गया। वो गुस्से से कहने लगे, मैंने तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। ला हासिल की खाक छानोगे तो रेजा रेजा हो जाओगे। मैं तुम्हें कभी अपने दामाद के रूप में कबूल नहीं कर सकता, चाहे तुम सोने के ही क्यों ना बनकर आ जाओ। इसलिए बेहतरी इसी में है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जूनी का रिश्ता मैंने अपने भतीजे से तय कर दिया है, तुम उसको तलाक दे दो। मेरी सारी बात सुनकर वो कहने लगी, अब लगता है कि प्लान के दूसरे हिस्से पर काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा, वो ऐसा क्या करेगी? तो कहने लगी, तुम देखते जाओ, बस मैं ऐसी अदाकारी करूंगी कि बाबा मेरी सारी बातें मान जाएंगे। वो मुझे लेकर अपने बाप के कमरे में आ गई और कहने लगी, बाबा मैं सारी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, मुझे बस मेरी मोहब्बत दान कर दे। मैं जानती हूँ एक बेटी के मुँह से ये सब बाप को सुनना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं मजबूर हूँ, किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो अपने बाप के कदमों में पड़ गई थी, हाथ जोड़ने लगी, वास्ते देने लगी, मगर सिराज साहब का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। तुम समझ क्यों नहीं रही? हम गैर खानदान में लड़कियां नहीं ब्याहते। चलो उठो यहाँ से, तुम्हें तलाक लेनी पड़ेगी। इसकी माँ अपनी बेटी की उजड़ी हालत देखकर तड़प उठी और उसे शानों से उठाना चाहा, मगर वो बाप के कदमों से लिपट गई। बाबा आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दें। आप जानते हैं ना, मैंने आज तक ना नहीं सुनी। मुझ में इतना हौसला नहीं है बाबा जान कि मैं तलाक ले लूँ। मुझ पर रहम करे बाबा, मेरे साथ वो सब ना करे जो दादा ने पुप्पो के साथ किया। सिराज साहब ने एक झटके से अपनी टांग छुड़ाई और जल्दी से बाहर की सिम्मत बढ़ गए। वो माँ के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। अम्मी यकीन माने, मेरे अंदर सवाए मोहब्बत के कुछ नहीं रह गया। अगर ये छिन गई तो मैं मर जाऊंगी। बाबा को बोले, मुझे जिंदा रहने दे, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो उसे देखकर हैरान रह गया कि वो इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल लेती थी। उसने नज़र बचाकर मुझे भी कुछ बोलने का कहा। मैंने कहा, आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। इसकी बेचारी माँ का दिल कट कर रह गया। उसे बामुश्किल चुप करवा कर अपने कमरे में चले गई। शाम को सिराज साहब आए तो हमें कमरे में बुलाकर कहने लगे, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं कर सकता। पहले मेरी बहन को सज़ा मिली, अब मैं अपनी बेटी को पसंद की शादी करने पर सज़ा नहीं सुना सकता। हम दोनों खुश हो गए। आखिर हमारा प्लान कामयाब हो गया था। हम इसके घर में घुसने में कामयाब हो गए थे। मैंने पूछा, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? कहने लगी, मैं पुप्पो पर नज़र रखूंगी और तुम पुप्पो के बेटे पर। मुझे लगता है कि पुप्पो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है, वही राज हमें मालूम करना है। मैं अपनी इस नकली बीवी के साथ उसके घर में रहने लगा। उसकी पुप्पो हर वक्त मुझे घूरती रहती थी। एक दिन मैंने सुना वो अपने बेटे से कह रही थी,
अगर जूनी के शौहर को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर से उसकी शादी तुमसे हो पाएगी। इन दोनों ने प्लान बनाया कि रात को जब सो रहे होंगे तो वो मेरे कमरे में आकर मेरा गला घूंट देंगे। मैं और जूनी अलहदा कमरों में रह रहे थे, इसलिए उनको बहुत आसानी होगी कि वो अपने मंसूबे पर अमल कर सके। रात के 12 बजे वो मेरे कमरे में दाखिल हुए और एकदम से बेड पर चढ़कर बिस्तर से ऊपर से गला दबाना शुरू कर दिया। अचानक मैं बेड के नीचे से ऊपर हुआ और कहा, मैं तो यहाँ हूँ, आप किसका गला दबा रहे हैं? वो दोनों बौखला गए। फौरन पीछे हटे तो देखा बिस्तर पर मेरी जगह सिराज साहब लेटे हुए थे। उन्होंने बेयकीन नजरों से अपनी बहन और भतीजे की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी ने कहा भी कि तुम दोनों उसके शौहर की जान लेना चाहते हो, मगर मैं न माना और खुद यहाँ लेट गया ताकि देख सकूं सच क्या है और झूठ क्या। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने आगे आते हुए कहा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे उनका एक ऐसा राज पता चल गया था जिसे ये सब घर वालों से छुपा रहे थे। आपकी बहन सालों बाद पाकिस्तान इसलिए आई ताकि अपने हिस्से की जायदाद के अलावा अपने भाई यानी आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी हासिल कर सके, वो भी आपकी बेटी के जरिए। और ये लड़का आपका भतीजा नहीं है बल्कि इनका नकली बेटा है। इनका असल बेटा इस वक्त अमेरिका की एक जेल में कैद है, जिसे छुड़वाने के लिए उनको कसीर रकम चाहिए जो सिर्फ उनको यहाँ से पाकिस्तान से मिल सकती थी। अपनी माँ का हिस्सा तो ये पहले ही अपने नाम कर चुकी हैं और आपके हिस्से की दौलत के लिए इस नकली बेटे से शादी करवा के बाद में आपको ब्लैकमेल करती और सारी प्रॉपर्टी हासिल करके बेच बाच के बाहर के मुल्क दोबारा फरार हो जाती। ये सब सुनकर सभी साकत रह गए थे। मुझे भी ये सब शाम में ही पता चला था जब मैंने पुप्पो के बैग में उसके असल बेटे की तस्वीर देखी। इतने में बाकी घर वाले भी शोर सुनकर आ गए थे। सबको जब सारी हकीकत मालूम हुई तो पुप्पो रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। वो मेरा एक ही तो बेटा था, उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई तो मैं क्या करती? उसे छुड़वाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। जोनी कहने लगी, आपकी नीयत और इरादा गलत था। आपने मुझे इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए और मुझे नकली शादी का ड्रामा करना पड़ा ताकि खुद को बचा सकूं। इसकी पुप्पो सबसे माफ़ी मांगने लगी। दादी ने साफ कह दिया कि हम तुम्हारे बेटे को छुड़वाने के लिए पैसे दे देंगे मगर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। हम दोनों ने माफ़ी मांगी मगर जूनी ने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया कि अब वो सच में मुझे अपना शौहर बनाना चाहती है। कुछ माह बाद हमारी सच में शादी हो गई और हम इसी कोठी में शिफ्ट हो गए जिसकी तामीर मैंने मजदूर बन के की थी और आज इसी घर में मैं मालिक बन के दाखिल हुआ था। वाकई कुदरत कभी कभी ऐसे मेहरबान होती है कि यकीन नहीं आता। अब मेरी जिंदगी शुक्र अदा करते ही गुजरनी थी क्योंकि मेरे हालात बदल गए थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।